It's an 800 point uptick on Nifty. Congratulations, 23,277, a fresh record high. 2,000 points on Nifty Bank, 50,927. Nifty 500, wow. Nifty 500, ladies and gentlemen, is higher than the Nifty. 718 points, 21,812. Let's look at prices immediately and tell you what's driving this rally. I want to see what HDFC Bank is doing. 1.8% higher. Reliance 83 rupees higher, 29.44. Infosys 20 rupees higher, 14.27. Let's very quickly look at all-time highs. Actually, it's an unbelievable list. Adani Ports 9% higher, 15.72. BEL 6% higher. Power Finance Corporation 6.5% higher, 5.25. HAL, Power Grid, L&T, NTPC, SBI all up more than 4 and 5%. And of course, in the railway pack, it's Container Corporation 3.5% higher. Sakshi, what are you getting? A whole host of green on my screen. Shell 2.6% higher on Sensex, 3.3% higher on the Nifty Mid Cap Index. Remember, it's a 3% up move on the Nifty Bank as well. 23,300 for the very first time is what we are seeing on the Nifty, viewers. The advances are 1849 versus just 63 declines on the NSE. So keep an eye out on that as well. Right now, the Nifty is ticking higher by about 600 points. Adani Ports 9% higher. Adani Power 10.3% up in trade. Sharp moves that can be seen on this one. Adani Enterprises up by 6.9%, RVNL up by 6.7%, Coal India up by 3.8%. That's the move that we are seeing. L&T up by 5% in trade today. We're also looking at Shriram Finance up 6.4%, sharp move that can be seen. Axis Bank 4% higher, ICICI Bank 3.7% higher in trade as well. M&M is opening 3.8% higher, Ultratech Cement by 3.2%. All the sectoral indices are up into the green for the very first time. Sensex has hit 76,500 as well. Indian Bank 5.1% higher share. Gaurav and Mr. Agarwal, very welcome to the conversation. Would you want us to do something, or should we, there is a celebration that's happening within our office as well. Devin Bhai is here. A very warm welcome to you, Devin Bhai. What a pleasure to have you on this kind of a day. Let's start with that lovely smile that you have, and then ask you the most important question. कुछ आज करें या अभी तैयारी कल की करें? Good morning, Shail. And well, I think हर रोज कुछ करने की जरूरत नहीं बनती है जब भी मार्केट ऑलरेडी को सपोर्ट कर रहा है. तो ऑलरेडी अपने पिछले दिनों के अंदर मार्केट के अंदर एक फेवर देखा था कि it ended up giving you the stocks at a price which are probably corrected prices. So to a greater extent, I think that was an opportunity which I believe that most of us have probably I think understood. आज जो हम देखने जा रहे हैं उसके अंदर मार्केट के अंदर आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ा यूफोरिक रिएक्शन भी है. एट द सेम टाइम एक ज्यादातर कॉन्फिडेंस भी बना है कि अगले समय के अंदर from here on you will be getting larger opportunities also for investing into the market. तो ये मार्केट का नियम है कि जब भी कभी ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट बनती है तो यहाँ पे आई थिंक एक तरह से एक यूफोरिक रिएक्शन जरूर बनता है. बट एक चीज साइलेंटली मैं नोटिस करना चाहूंगा यहाँ पे जो वीक्स है वो वीक्स आई थिंक इज नाउ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एट हायर लेवल्स. फ्रैंकली लास्ट टाइम भी जब हमने 2019 के इलेक्शन के बाद हमने देखा था, I think weeks in that particular week of announcement of result, election result, करीबन 30 टच हुआ था और बाद में 29 के आसपास रहा था. And I think in the following 3 weeks it touched I think again 15. That means जो मार्केट की वोलेटिलिटी है 3 वीक के अंदर काफी हद तक सेटल हो जाती है. ऐसा एक अनुमान हम लगा के चलते हैं पिछले थोड़े इलेक्शन का स्टडी करने के साथ में. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये थोड़ी यूफोरिक कंडीशन चालू रहेगी. शायद निफ्टी के अंदर आप 23,500 या 24,200 को एक अपसाइड लेवल की एक कैलकुलेशन करके चल रहे हैं और डाउन साइड के अंदर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वील हैव 22,000 एंड 21,800 एंड 21,500 काइंड ऑफ लेवल की हम एक अपेक्षा करके चल रहे हैं. तो ये एक रेंज के अंदर मार्केट प्ले करेगा ऐसा मेरा मानना है एज ऑफ नाउ.
ओके देवेंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जैसा कि आपने कहा कि 24,000 का लेवल तो आपने सोच के रखा है आ ही जाएगा, तो जो ज्यादातर लोग हमारे सब इन्वेस्टर्स व्यूअर्स वेट कर रहे थे कि कब आएगा, तो शायद वो भी अब पेंसिल्ड इन है। आपने बता ही दिया कि अपर एंड में 24,200 आप पेंसिल इन करके चल रहे हैं। फिलहाल रेंज बाउंड बाजार इस तेजी के बाद देखने को मिल सकता है। कहां पर अब पैसा बनेगा अगले 5 साल के लिए? अगर कोई निवेशक आज की डेट में निवेश करे, मोदी 3.0 हमारे जहन में अब ऑलरेडी है कि हो ही रहा है, अब वो सीट्स का बस अंतर है जो हमें कल पता चल जाएगा कि किस सीट पर आएगा। पैसा कहां बनेगा? अभी तक के जो विनर्स थे डिफेंस, रेलवे, पीएसयूज, वहीं, या कुछ नए सेक्टर्स उभर कर आएंगे? साक्षी, कंप्लीट स्टेबिलिटी एट द बैक ऑफ माई माइंड। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल के अंदर द साइज विल मैटर, क्योंकि जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जिसके पास क्षमता रहेगी डिलीवर करने के लिए, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। विच मीन्स दैट इन एवरी सेक्टर इफ यू सी द लीडर्स, वो लीडर्स जो है, आई थिंक दे विल बी द कैटलिस्ट, दे विल बी द वंस आई थिंक विल बी प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, and so would be, I think, steady rate of return in the portfolio of investors. Say for example, companies like SBI, currently valuation के साथ में देखें तो भी I think it is not expensive. At the same time, it is promising to double the size of the balance sheet in next 4 years time. Similarly, the situation in any other banking stock that if you take, जहाँ पे बैलेंस शीट वेल कैपिटलाइज है, उनको डेफिनेटली आई थिंक आपको अगले 3, 3.5, 4 साल के अंदर बैलेंस शीट डबल करने की एक पूरी विजिबिलिटी मिल रही है। Likewise, I think some of the larger companies, including those infrastructure business like Adani, like Reliance, particularly in the renewable segment, कि जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए ऑलरेडी बन चुकी है। I think they will probably be doing this entire activity in a much larger scale going forward. तो एक चीज डेफिनेटली कंक्लूडेड है यहाँ पे, so the mid and small size companies will have an equal opportunity to participate in this kind of a rally. But those who will be making maximum profit are the ones who are going to be the larger companies. और उसके पीछे मेरा एक दूसरा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनके लिए आई थिंक द कंपनीज व्हिच आर मेकिंग लार्जर प्रॉफिट, बिगर बैलेंस शीट साइज, इज सेफ टू पुट मनी इनटू दोस कंपनीज। सो मे बी अभी तक उन्होंने उसका जो एक प्रक्रिया होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन इज आल्सो इनवाइटिंग देम to add more into their portfolio in some of the larger companies, those who are getting bigger. So एक caption लग के चलते हैं, big is getting bigger, and I think this is where probably the next 5 years should be giving plenty of opportunities. Okay. इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये छुपी हुई है कि अगर आप लार्ज कैप्स पर फोकस करेंगे तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन और रिस्क कम होता है मुकाबले की मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के, जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। तो देवेंद्र भाई, ये बात तो बहुत अच्छी समझ में आई कि ना सिर्फ आप मार्केट लीडर को खरीदेंगे, आपका जो लेवल ऑफ रिस्क है वो कम रहेगा। लेकिन ये बात बताइए कि ये कदम आज उठाया जाए जब निफ्टी 600 अंक ऊपर है, ये कदम कल उठाया जाए जब और तेज़ी होगी, या शायद आपको मुनाफा वसूली का टाइम मिले, या इसको रोका जाए अभी और 10-12 दिन देखा जाए बजट तक? क्या राय ली जाए? So I think शायद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि ये मार्केट के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन हम पकड़ के चलते हैं, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर करते हैं। सो मे बी आई थिंक वी आर गेटिंग अ सेंस कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही। जैसे हम कोई कंपनी के नाम के साथ में बात करते हैं तो खाली उसका एक रेफरेंस के लिए बात करते हैं, ना कि कोई टिप देने के लिए। बट एक चीज है कि सपोज जैसे मैंने एसबीआई की बात की, तो एसबीआई जैसी कंपनी है जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता ज्यादा इसलिए है कि उसके बैलेंस शीट वेल कैपिटलाइज है और उसके बैलेंस शीट के अंदर आज की तारीख में नॉन परफॉर्मिंग एसेट के प्रोविजंस भी निकल चुके हैं। सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दिस काइंड ऑफ बैलेंस शीट शुड बी प्रीफर्ड फॉर इन्वेस्टिंग। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि आज देना चाहिए, कल लेना चाहिए कि परसों लेना चाहिए। मैं मार्केट के टाइमिंग के साथ में कभी ऐसा व्यू नहीं रखता हूँ कि कौन से दिन पे लेना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में रेगुलर लेवल पे ट्रेडर्स जो रहते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। जब ट्रेडर्स बुक प्रॉफिट करें
तभी वो समय इन्वेस्टर को आना चाहिए, बिकॉज ट्रेडर्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन बोथ मार्केट्स। जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट वो बुक करते हैं तभी इन्वेस्टर को नीचे के दाम में शेयर्स देके जाते हैं, जब भी मार्केट के अंदर वो यूफोरिक हो जाते हैं तो इन्वेस्टर को छोड़ने के लिए वो एक ही ऊंचे दाम भी दे देते हैं। In my viewpoint, if you are investor, I think you should take this as an opportunity. Whenever traders book profit, आपको गुड क्वालिटी स्टॉक जो आइडेंटिफाई किए हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए।